Hello, dear students. How are you all? Welcome to Educational Corner. Today we are going to start chapter number 7, that is heat transfer in nature, from our science curiosity book of standard 7. This chapter, heat transfer in nature, is about transfer of heat in different objects, and we are going to read of how the heat transfer in different objects through different ways. First, let us understand what is the meaning of heat transfer. So, transfer of heat means uh, when some hot molecules convert into cold molecules, at that time the heat transfer takes place. For example, you might have observed that a tawa or a frying pan, it becomes hot when you keep it on a flame, right? So it is because the heat passes from flame to utensil. So that is why the utensil, that is the tawa or the frying pan, it gets hot. But once you remove it from the fire, what happens? It slowly cools down. So the hot molecules transfer into the or convert into the cold molecules, and this is called transfer of heat. Okay, so we are going to read about heat transfer in nature by three ways. So three ways are conduction, convection and radiation. So we are going to read about conduction and convection in this video, and radiation we will read in the next video. Okay, so let's start reading this chapter. I hope you have understood the meaning of heat transfer. Heat transfer is when the hot molecules convert to cold molecules, at that time the heat transfer. So it is called the transfer of heat. And there are three ways in which heat can transfer. One is conduction, convection second, and radiation is third. Conduction is it always take place in solid. Okay, for example, when we talk about frying pan or tawa, it is a solid. So conduction take place in solid. Then when we talk about convection, you can see in the picture also that it take place in liquid and gas. And radiation is when there is some kind of a medium present when the heat gets transferred. Okay, so we will read about all the three in this chapter. So let's get started. Heat transfer in nature. Pema and her brother Paldan resides in Gangtok. On a cold winter evening, they are sitting around a fireplace. So पेमा और उसका जो ब्रदर है पल्डन, वो कहाँ रहते हैं? गैंगटॉक में रहते हैं. और एक मतलब ऐसा था कि बहुत विंटर में जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, एक ऐसी इवनिंग में वो एक फायर प्लेस के पास जहाँ पर आग जल रही थी वहाँ बैठे हुए थे. पल्डन shares his experience of visiting Kerala during the winter vacation. He says that compared to Gangtok, winter in Kerala is comparatively warm and humid. ठीक है, तो पल्डन जो है उसने बताया अपना एक्सपीरियंस कि जब वो गया था उस टाइम पर विंटर वेकेशन में, तो वो केरला जो है वो थोड़ा सा वार्म है और ह्यूमिड भी है, वहाँ पर ह्यूमिडिटी भी है. गैंगटॉक में थोड़ी सी ज़्यादा ठंड है. बोथ पेमा एंड पल्डन आर क्यूरियस अबाउट वाई सम प्लेसेज आर सो कोल्ड एंड अदर आर क्वाइट हॉट. तो उन दोनों को ही बहुत ज़्यादा वो क्यूरियस थे जानने के लिए कि कई प्लेसेस तो बहुत ठंडी होती हैं और कई जो है वो बहुत गर्म होती हैं, तो ऐसा क्यों होता है. Hearing them express their curiosity, their grandfather, a retired science teacher, says Kerala is closer to the equator than Sikkim, and it also has a long coastline, which results in warmer and more humid weather conditions. ओके, तो उनके जो ये क्यूरियोसिटी थी या जो वो क्यूरियस थे जानने के लिए, उनके जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने वो एक रिटायर्ड साइंस टीचर थे जिन्होंने बताया कि केरला जो है ना वो इक्वेटर के क्लोज है, मतलब उससे इक्वेटर के बिल्कुल पास है. ठीक है. देन सिक्किम, सिक्किम जो है वो दूर है, इसी वजह से उसकी कोस्ट लाइन जो है वो भी बहुत कोस्ट लाइन जो है वो लंबी है और वो इसीलिए वार्मर है क्योंकि वो जो है वो इक्वेटर के पास है. ठीक है, इसलिए वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी है और इसीलिए वो ह्यूमिड भी है. पल्डन रिप्लाइज
Yes, we learned in grade 6 science and social science that for us on the earth, the sun is the main source of light and heat, and around the equator the climate is generally hot. So पल्टन ने रिप्लाई किया कि हमने 6 स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है ये कि हमारी अर्थ जो है ना उस पे जो अल्टीमेट जो सोर्स है हीट और लाइट का वो क्या है, सन है। क्यों? और जो प्लेसेस सन के बिल्कुल उसके इक्वेटर के बिल्कुल पास में है वो प्लेसेस जो हैं उनका क्लाइमेट कैसा है, बहुत ज़्यादा गर्म। As they were talking, Pema is keenly observing her grandmother cooking thuppa, a traditional Sikkimese dish in a large metal pan. So I have put the picture of यहाँ पे थुप्पा। थुप्पा क्या है? उसकी जो ग्रैंड मदर है वो थुप्पा बना रही थी। ट्रेडिशनल सिक्किमीज डिश होती है ये, ठीक है। पेमा आस्क व्हाई आर यू कुकिंग, व्हाई आर कुकिंग यूटेंसिल्स जनरली मेड ऑफ मेटल। पेमा का दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि जो उसकी ग्रैंड मदर जो कुक कर रही थी, क्यों आप इसे यूटेंसिल में ही, यूटेंसिल जो होते हैं हमारे जिसमें हम कुक करते हैं वो मेटल के क्यों बने होते हैं। Paldon immediately responds that they had studied in the chapter the world of metal and non-metal that such materials are good conductor of heat. तो पल्डन ने रिप्लाई किया कि ये मेटल के क्यों बने होते हैं, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में चैप्टर में पढ़ा है कि वर्ल्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल में कि ये जो मटेरियल होता है ना जो जिससे ये बने होते हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। हाउ डज हीट गेट ट्रांसफर इन दीज मटीरियल। अब हीट कैसे ट्रांसफर होती है इन मटीरियल्स में। The heat is transferred in these materials through a process called conduction. During conduction, the particle is heated, passes the heat to its adjacent particle one after the other. The particles remain fixed in their position. ठीक है, तो हीट कैसे ट्रांसफर होती है। आप अगर एक कोई भी पैन ले लो, ठीक है, आपने उस पैन को अगर अपने डायरेक्ट आपने उसको जो है गैस पे रख दिया तो वो डायरेक्ट जो है वो जो भी पैन होगा वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि जब हम किसी भी चीज़ को हम डायरेक्टली जैसे हीट पर हमने रख दिया तो वो जो हीट जो होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है उस मटेरियल में, ठीक है, उस मटेरियल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। कैसे ट्रांसफ़र होती है? कंडक्शन की प्रोसेस से। कंडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो कंडक्शन के अंदर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मीन्स जैसे फायर और पतीला, अगर हमने फायर के ऊपर पतीला रखा है तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, तो हीट ट्रांसफर हो रही है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में। तो कंडक्शन भी एक ऐसी कंडक्शन की प्रोसेस के थ्रू ही हीट जो है वो मटेरियल में जो है इनमें ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू लर्न व्हाई सर्टेन मटेरियल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट। Caution, let us experiment. This activity should be carried out under the supervision of adult or an or a teacher. ठीक है, आपने ये एक्टिविटी जो है ये कैसे करनी है? किसी भी अडल्ट और टीचर के साथ उसके सुपरविजन में। टेक अ स्ट्रिप ऑफ मेटल, आपने एक मेटल स्ट्रिप लेनी है, ये मेटल स्ट्रिप बनी हुई है। such as a long such as a aluminium or iron about 15 centimeter long, ये आपने एक मेटल स्ट्रिप ले ली। Attach 4 pins to the strip with the help of wax that they are arranged nearly equal distance about 2 centimeter apart as shown in figure 7.1। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे 4 पिन लगाने हैं और चारों पिनों को आपने इक्वल डिस्टेंस पे 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लगाना है, ठीक है। और इसको आपने वैक्स के उससे अटैच करना है, ये जो वैक्स है ना बर्निंग कैंडल है इससे अटैच करना है, इससे चिपकाना है। सिक्योर द स्ट्रिप टू द स्टैंड एंड लेबल द पिन 1 2 3 4 एज शोन इन फिगर 7.1। ठीक है, इफ अ स्टैंड इज नॉट अवेलेबल प्लेस द स्ट्रिप बिटवीन 2 ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स के यूज से भी आप इसे कर सकते हो। वैसे एक आपने स्टैंड लेकर मेटल स्ट्रिप का आपने एक बर्निंग कैंडल लगानी है और पिन्स लगाने हैं 4 इक्वल डिस्टेंस पे वैक्स की हेल्प से। Heat the end of strip that is away from the stand with the candle or a spirit lamp। ठीक है, आपने इस स्ट्रिप को, मेटल की स्ट्रिप को जो है ना आपने क्या करना है, हीट करना है एक कैंडल से या किसी स्पिरिट लैम्प से। What will happen to the pins? Will they remain attached to the strip or they will fall? ठीक है, जो पिन्स हैं क्या वो गिर जाएंगे या फिर वो जैसे ही आप हीट करोगे वो वहाँ पे चिपके रहेंगे। प्रिडिक्ट द ऑर्डर इन विच पिन्स विल फॉल फ्रॉम द स्ट्रिप। आपको प्रिडिक्शन बतानी है यहाँ पे कि पिन्स कैसे फॉल करेंगे, पिन 1 2 3 4, ठीक है। और रिकॉर्ड करना है इस ऑब्जर्वेशन को, आपने प्रिडिक्ट भी करना है कि वो कैसे करेंगे, कौन सा पहले गिरेगा, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है और रीजन फॉर व्हाट यू ऑब्जर्व और उसका क्या रीज़न है।
पिन्स फॉलिंग फर्स्ट, प्रिडिक्शन पिन 1, ठीक है, पिन वन फेल फर्स्ट एज इट वॉज क्लोजेस्ट टू बर्निंग कैंडल कॉजिंग दी वैक्स टू मेल्ट क्विकली, क्योंकि वो वैक्स से चिपके हुए थे इसलिए पिन 1 जो है वो सबसे पहले गिरेंगे. पिन 2, एज द हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पिन 1 टू पिन 2 एज एक्सपेक्टेड पिन 2 विल फेल आफ्टर पिन 1 ड्यू टू हीट कंडक्शन. ठीक है, पिन 2 तब गिरेगा जब पिन 1 गिर जाएगा, उसके बाद पिन 2 गिरेगा क्योंकि वो जो है वो हीट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी. पिन 3 जो है वो पिन 2 के बाद गिरेगा. ठीक है, और पिन 4 भी एट लास्ट पिन 4 फेल एज इट इज फारदेस्ट फ्रॉम द बर्निंग कैंडल सो इट टुक लॉन्गेस्ट टाइम टू हीट अप एंड मेल्ट द वैक्स. ठीक है, तो इस तरीके से आपने प्रिडिक्शन डालनी है. पिन 1 की प्रिडिक्शन क्या होगी, सबसे पहले पिन 1 गिरेगा क्योंकि वैक्स फटाफट से मेल्ट हो जाएगी क्योंकि बर्निंग कैंडल सबसे उसके पास में. फिर पिन 1 के बाद पिन 2 गिरेगा क्योंकि हीट ट्रांसफर होगी पिन 2 पे. फिर पिन 3 गिरेगा, फिर पिन 3 के बाद पिन 4 सबसे लास्ट में गिरेगा. तो ये रही हमारी प्रिडिक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड रीजन व्हाट यू हैव ऑब्जर्व. You observe that the pins closest to the candle flame, pin 1 falls first, followed by pin 2nd, 3rd and 4th. तो हमारी ऑब्जर्वेशन यही है, पिन 1 पहले गिरेगा, फिर 2, फिर 3 और फिर 4. Why does pin 1 fall before pin 2? पिन 1 पहले क्यों गिरा, क्योंकि एक तो उसके कैंडल जो है वो बिल्कुल पास में थी. ठीक है, वो वैक्स के साथ पिन जो है लगा हुआ था और इस वजह से वो वैक्स जल्दी मेल्ट हुई और हीट ट्रांसफर जल्दी से हो गया. Why did all the pins not fall together? एक साथ क्यों नहीं गिरे? From your observation, what can you infer? Do you think the heat being transferred along the metal strip from the end that is being heated? As the heat travel along the strip approaches a pin, the wax holding it melts and pins fall. जैसे जैसे हीट जो है ट्रैवल किया, मूव करा हीट ने, एक स्ट्रिप से मूव कर रही थी वो, सबसे पहला पिन जो था वो कौन सा था, पिन 1. उसकी वैक्स मेल्ट हुई और पिन गिर गया. Here, the transfer of heat take place from hot end of strip to the colder one. Hot part से strip के hot part से cold end पे जैसे transfer हुई heat, तो क्या हुआ, the process of heat transfer from hotter part of an object to colder part is called conduction. ठीक है, conduction क्या है, जब हमने हीट ट्रांसफर करी कहाँ पर, हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट में. देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने फ्लेम ऑन किया और हमने यहाँ पैन रख दिया. ठीक है, तो हीट जो है ना, ये ऑब्जेक्ट जो था ना ये कोल्ड था. ये आपको बताती हूँ मैं, ये जो ऑब्जेक्ट था ना ये कोल्ड था. ठीक है, और हमने जब हीट ट्रांसफर करी तो ये हीट जो है ये हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट पे गई. ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन. इन दिस प्रोसेस द पार्टिकल दैट गेट्स हीटेड पास द हीट ऑन टू हिज नेबर. हमने यहाँ पे हीट ऑन करी, फ्लेम ऑन करी, तो ये इसने हीट किसे पास कर दी, इस पैन को. ठीक है, और ये हैंडल को, इस पैन को और हैंडल को हीट पास हो गई, यहाँ भी हीट पास हो गई, तो ये कंडक्शन प्रोसेस है. ठीक है, however the particles themselves do not move from their position. इसमें particles जो है वो मूव नहीं करते अपनी पोजीशन. Materials like metals that allow heat to pass through them easily are called good conductor of heat. ये आपको पहले भी पढ़ाया था, गुड कंडक्टर कौन से होते हैं, जो अलाउ करते हैं हीट को पास होने के लिए. ठीक है, बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट वी यूज यूटेंसिल्स मेड ऑफ मेटल्स फॉर कुकिंग. इसीलिए हम मेटल्स के बने यूटेंसिल को यूज करते हैं कुकिंग के लिए. क्यों, क्योंकि वो एक गुड कंडक्टर है हीट के. इन सॉलिड हीट ट्रांसफर टेक प्लेस मेनली थ्रू दी प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. सॉलिड मतलब जैसे कि आपका पैन हो गया, फ्राइंग पैन हो गया, तवा हो गया, कढ़ाई हो गई, ये सब चीज़ों में ये सॉलिड्स जो हैं इन सब में हीट ट्रांसफर कैसे होता है, किस प्रोसेस से, कंडक्शन से. ठीक है, और कंडक्शन बेसिकली है क्या, कंडक्शन है जब हम हीट ट्रांसफर करते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में. ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में वाटर से कोल्डर में. ठीक है, जैसे कि आपने एक पतीला आग पे रखा तो वो आग के डायरेक्ट कांटेक्ट में आके पतीला भी जो है वो गर्म हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड कंडक्शन. If we use a strip made of material like wood or glass in place of metal strip to perform activity 7.1, the pin will not fall. ठीक है, अगर हम एक मेटल स्ट्रिप की जगह, जो हमने मेटल स्ट्रिप ली थी उस एक्टिविटी में, उसकी जगह हम वुड की या ग्लास की कोई स्ट्रिप ले लेते तो पिन जो है वो फॉल नहीं करेंगे. ठीक है, तो कैन यू थिंक ऑफ द रीजन फॉर दिस बेस्ड ऑन द लर्निंग ऑफ वर्ल्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. क्योंकि जो वुड है और ग्लास है दे आर नॉट दी
because wood and glass, they are poor conductor of heat and they will not allow heat to pass through them. That is why जो पिंस होंगे वो नहीं गिरेंगे. ठीक है, तो इसका रीज़न ये है कि ग्लास और जो वुड है वो अलाउ नहीं करेंगे हीट को पास होने के लिए, इसीलिए वो नहीं, जो पिंस हैं वो उनमें हीट ट्रांसफ़र होगी ही नहीं, तो वो पिंस नहीं गिरेंगे. Materials such as glass and wood do not allow heat to pass through them easily and are called poor conductor. इसलिए हम इन्हें poor conductor या insulator of heat बोलते हैं, क्योंकि ये heat allow नहीं करते पास में. Clay and porcelain are also poor conductor of heat. That is why tea or coffee kept in such cups stay hot लॉन्गर. ठीक है, तो पोर्सिलेन या क्ले जो है, इनमें अगर टी या कॉफ़ी रखोगे ऐसे कप्स में, तो वो ज़्यादा टाइम तक गर्म रहेगी. क्यों? क्योंकि ये भी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, वो हीट अलाउ नहीं करते पास होने के लिए. नाउ आई नो आई जनरली यूज मेटल utensils for cooking, whereas we prefer clay and porcelain cups for drinking tea and coffee. तो हम क्यों यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, ये समझ आ गया कि वो गुड कंडक्टर है. और कॉफ़ी और टी हम पोर्सिलेन और क्ले कप्स में क्यों पीना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो बैड कंडक्टर है. Here I have posted some pictures. कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर कौन से हैं? कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ग्रेफाइट, आयरन. मटीरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, उनको कंडक्टर बोलते हैं. और इंसुलेटर, पेपर, ग्लास, रबर, वुड, फैब्रिक. मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. सो कंडक्टर्स होते हैं गुड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स होते हैं बैड कंडक्टर्स. List some materials around you and classify them as good or poor conductor of heat in table 7.2. तो 7.2 में हमें कुछ गुड कंडक्टर्स लेने हैं, कुछ जो है वो बैड कंडक्टर्स, पोअर कंडक्टर्स लेने हैं, और बताना है कि ये क्या है. स्टील गुड कंडक्टर, वुड क्या है? पोअर कंडक्टर. गोल्ड गुड कंडक्टर. डज योर लिस्ट इंक्लूड एयर? इफ इट इज there on the list, where have you placed it? You must have experienced that during winters we prefer wearing woolen clothes to keep ourselves warm. ठीक है, तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि विंटर्स के टाइम पे जब बहुत ठंड लगती है, उस टाइम पर हम वूलन क्लोथ्स को वेयर करते हैं. क्यों करते हैं? ताकि हम अपने आप को वार्म रख सकें, गर्म रख सकें. ठीक है. Woolen fabric trap air in its pores and as it is poor conductor of heat, it reduces heat flow from our bodies to our surrounding. ठीक है, वुलन फैब्रिक जो होता है ना, जो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, वुलन होता है जो, उसमें जो है हीट ट्रैप हो जाती है. ठीक है, इससे क्या होता है, हमारे शरीर की हीट जो है ना वो सराउंडिंग में नहीं निकल पाती, तो इसीलिए हम वुलन पहनते हैं. एज अ रिजल्ट वी फील वार्म. इससे क्या होता है कि हम बहुत गर्म फील करते हैं. Similarly, air trapped between the layers of clothing acts as a poor conductor of heat and keeps us warm. तो ये जो हम क्लोथिंग, जितने कपड़े हम पहनते जाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर की हीट नहीं निकल पाती, वो ट्रैप हो जाती है अंदर ही, और इसीलिए इनको हम बोलते हैं पोअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड दे कीप अस वार्म. The presence of air between two thin blanket is the reason why we prefer them over thick blanket to keep us warm. ठीक है, तो एयर जो दो ब्लैंकेट्स के बीच में है, ठीक है, इज द रीजन वाई वी प्रेफर देम ओवर वन थिक ब्लैंकेट टू कीप अस वार्म. एक ब्लैंकेट हमें जो है वो गर्म रखता है, पर अगर हम उसके ऊपर एक और ब्लैंकेट ले लेते हैं तो क्या होता है, उससे ज़्यादा और गर्माहट आ जाती है. तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि जो है वो एयर है जो वो ट्रैप हो जाती है, वो निकल नहीं पाती. तो एयर ट्रैप बिटवीन टू थिक ब्लैंकेट एक्ट एज अ इंसुलेटर. तो हमें हेल्प करती है गर्म रखने में, वार्म रखने में, अगर टू थिन ब्लैंकेट्स हम जो है वो यूज़ करें, तो वो एयर को ट्रैप कर लेती है. Is it possible to construct houses that are not affected much by outside heat and cold? Houses constructed in places with a very hot and cold climate often uses the concept of heat transfer to keep them cool or warm. ठीक है, ऐसी जगह पर हाउसेस बनाना क्या इजी है जहाँ पे बहुत गर्मी या बहुत ठंड हो? ऐसी जगह पर हाउसेस बनाना जो है ना, वो किस कंसेप्ट से बनते हैं, ताकि अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो वो हाउस गर्म रहे अंदर से, और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो अंदर से हाउस ठंडे रहे. ठीक है. फैसिनेटिंग फैक्ट, द अपर रीजन ऑफ हिमालय सच एज मोरी ब्लॉक ऑफ उत्तरकाशी इन उत्तराखंड एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट एंड हैविंग heavy snowfall during winters.
ठीक है। अपर रीजन ऑफ हिमालय का जो सबसे ऊपर का जो रीजन है, जो उत्तरकाशी कहलाता है उत्तराखंड में, वहाँ पर क्लाइमेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, और रेनफॉल भी जो है, स्नोफॉल भी बहुत हैवी होती है वहाँ पर। Houses here are often built to stay warm during winters with walls of two wooden layers filled with cow dung and mud between them. वहाँ के जो घर बने हैं वो कैसे बने हैं, वो घर ऐसे बने हैं ताकि विंटर्स में उनको अंदर से वो गर्माहट मिल सके। इस चक्कर में उन्होंने उसको कैसे बनाया है, दो वुडन लेयर्स से बनाया है। ठीक है, वुड की लेयर बनी है, वॉल्स जो है ना वो वुड से बनी हुई है, ताकि जो अंदर का घर है वो गर्म रहे। और बीच में उसमें काउडंग और मड भरा हुआ है, मिट्टी भरी हुई है। एज वुड एंड मड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, दे प्रिवेंट हीट लॉस एंड कीपिंग इन एंड हेल्प इन कीपिंग द हाउसेस वार्म। तो वुड और मड दोनों यूज करे हुए हैं इन्होंने, ताकि जो अंदर गर्माहट है वो बनी रहे, बाहर ना जाए, क्योंकि ये दोनों पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, और जो अंदर की हीट है वो बाहर नहीं जा पाएगी। इससे क्या होगा, हाउस जो है अंदर से गर्म रहेंगे। बाहर के क्लाइमेट में अगर हम निकले तो वहाँ बहुत विंटर है, बहुत ज़्यादा ठंड है, बट अंदर जो है वो घर बहुत ज़्यादा गर्म रहेंगे। There are houses with outer walls that are constructed using hollow bricks that keep them warm in winter and cool in summer. This happens because the air that get trapped in the hollow bricks is a poor conductor of heat. ठीक है, तो कई हाउसेज ऐसे भी हैं जिनकी आउटर वॉल, जो बाहर की जो दीवारें हैं, उनको बड़ी बड़ी हॉलो हॉलो ब्रिक्स के साथ रखा गया है, ताकि उससे कंस्ट्रक्ट किया गया है ताकि अंदर का घर जो है ना वार्म रहे, और विंटर्स में वार्म रहे और समर में कूल रहे। ठीक है, दिस हैपन बिकॉज एयर गेट ट्रैप्ड इन द हॉलो ब्रिक्स। एयर जो है ना उस हॉलो ब्रिक्स में, बड़ी बड़ी ब्रिक्स में ट्रैप हो जाती है। ठीक है, इसलिए वो, क्योंकि वो एक पुअर कंडक्टर है। Pema draws Palden attention to the rising smoke from the burning firewood around which they are sitting. ठीक है, तो जहाँ वो फायरवुड के पास, स्टार्टिंग में बताया था बैठे हुए हैं, बहुत ठंडा है इसलिए, तो वो वहाँ बैठे हैं फायरवुड के पास। अब वहाँ से कुछ स्मोक जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो पेमा जो है वो पाल्डन की जो है नज़र उस तरफ, अटेंशन उस तरफ हो जाती है कि ये स्मोक, वाई इज द स्मोक गोइंग अप, स्मोक ऊपर क्यों जा रही है। द स्मोक इज गोइंग अप बिकॉज हॉट एयर राइजेस। हॉट एयर जो है वो गर्म हवा राइज कर जाती है। When smoke is produced, it is usually warm or hot. जब smoke produce होती है वो गर्म होती है। Due to convection, the hot air and the smoke with it becomes lighter, the surrounding cooler air and rises up. ठीक है, कन्वेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो हीट ट्रांसफर करती है किसी मीडियम इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट की हेल्प से। ठीक है, तो जो हॉट एयर है ना, जो या स्मोक है, वो लाइटर हो जाएगी, हल्की पड़ जाएगी, और जो आसपास की सराउंडिंग है वो कूल है। ठीक है, इस वजह से वो जो लाइटर एयर है, यानी कि जो हॉट एयर है, वो लाइट होकर ऊपर की तरफ जाने लगी। कन्वेक्शन। टू अंडरस्टैंड व्हाई स्मोक राइजेस, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। ठीक है, अब ये स्मोक क्यों राइज कर रही थी, उसके लिए हम एक एक्टिविटी भी परफॉर्म करेंगे। टू एक्टिविटी 7.2, लेट अस इन्वेस्टिगेट, टेक 2 आइडेंटिकल पेपर कप्स। यहाँ पर 2 हमें आइडेंटिकल एक जैसे पेपर कप लेने हैं। हैंग देम यूजिंग थ्रेड्स ऑफ इक्वल लेंथ इन एन इन्वर्टेड पोजीशन ऑफ 2 एंड्स ऑफ वुडन स्टिक एज शोन इन 7.3। ठीक है, ये एक वुडन स्टिक है, वुडन स्टिक से हमें 2 पेपर कप जो है यहाँ पे थ्रेड से अटकाने। नाउ एडजस्ट द पोजीशन ऑफ कप सो दैट द स्टिक इज हॉरिजॉन्टल। अब इसकी पोजीशन ऐसे हमें करनी है कि ये थोड़ी हॉरिजॉन्टल में आ जाए। प्लेसिंग अ बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द कप, एक कप के नीचे आपको बर्निंग कैंडल रखनी है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द कप, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 7.3 एंड थिंक ऑफ प्रोबेबल रीजन। ठीक है, अब ऐसा क्यों, अब क्या होगा जब आप नीचे यहाँ कैंडल के कप जो है यहाँ रखा है और आपने इसके नीचे कैंडल रखी है, तो आपने ऑब्जर्वेशन अपनी बतानी है। ऑब्जर्वेशन अबाउट द कप्स। द कप अंडर विच द बर्निंग कैंडल इज प्लेस्ड राइजेज। ठीक है, जो आप देखोगे, जो जिस कप के नीचे आपने बर्निंग कैंडल लगाई है ना, वो ऊपर की तरफ हो जाएगा। इसका रीज़न क्या है? इट वुड हैव रिजन बिकॉज द एयर नियर द कैंडल एंड इनसाइड द कप हीट्स अप, एक्सपैंड्स एंड राइजेस। क्यों ऊपर की तरफ वो हो गया? क्योंकि जो एयर है ना कैंडल के पास,
और कप के अंदर वो उसको ऊपर की तरफ ले जाती है. You observe that the cup under the candle was placed rises up. Why is it so? The air around the candle flame heats up. As the air in the cup warms up, it expands and occupies more space. जैसे जैसे जो गरम वो है उसके अंदर एयर है, वो जो है जैसे जैसे एक्सपैंड कप ऊपर की तरफ जा रहा है उसमें स्पेस बनती जा रही है. एज अ रिजल्ट इट बिकम्स लाइटर एंड राइजेस अप. जैसे जैसे उसमें स्पेस बनती जा रही है वो लाइट होता जा रहा है और ऊपर की तरफ होता जा रहा है. You can experience the expansion of air on heating it by placing a partially inflated balloon in the sun. अगर आप एक बलून को इन्फ्लेट करके फुलाकर उसके अंदर जो है हवा भरकर उसको सन में रख दोगे तो क्या होगा. आफ्टर द एयर इन द बलून गेट्स हीटेड इट एक्सपैंड्स एंड द बलून बिकम्स लार्जर. ठीक है, जैसे ही आप उसे सन में रखोगे ना थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा और जैसे ही वो गर्म होगा तो वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा. You must have observed that when an incense stick यानी अगरबत्ती इज बर्न, जब एक अगरबत्ती को बर्न किया जाता है, स्मोक राइजेज अप. स्मोक जो है धुआं ऊपर की तरफ जाता है. स्मोक इज अ मिक्सचर ऑफ हॉट गैसेज एंड टाइनी सॉलिड पार्टिकल दैट आर रिलीज्ड व्हेन समथिंग बर्न्स. ठीक है, स्मोक है क्या, स्मोक जो है ना हॉट गैसेज और टाइनी छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल से बना हुआ जो है वो रिलीज होता है जब हम उसे बर्न करते हैं. एज इट इज़ वार्मर देन द सराउंडिंग एयर इट राइजेज. तो जो लाइटर होगा वो हमेशा राइज करेगा. तो ये भी यहाँ पर वार्म है, लाइटर है, तो वो राइज अप कर जाता है, मतलब ऊपर हो जाता है. लेट अस फाइंड आउट हाउ हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन लिक्विड बाय परफॉर्मिंग दिस फॉलोइंग एक्टिविटी. लिक्विड में हीट ट्रांसफर कैसे होती है, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू ही होती है. ठीक है, how does the heat transfer take place in liquids? Do liquid also rise up when heated like air? क्या एयर की तरह लिक्विड भी राइज करते हैं? When water is heated in a container, आपने एक कंटेनर में पानी लिया, उसको जब आपने गर्म किया, ठीक है, तो क्या होगा, द वाटर एट द बॉटम बिकम्स हॉट. वाटर जो है वो नीचे वाला जो है वो गर्म हो जाएगा. एक्सपैंड्स एंड बिकम लाइटर कॉजिंग इट टू राइज. एज द वार्मर वाटर राइजेज, वार्मर पानी जो है वो राइज होगा. कूलर एंड हेवियर वाटर मूव्स डाउन टू टेक प्लेस. ठीक है, नीचे जैसे ही आप वाटर अपना जो भी कंटेनर है उसको रखोगे, उसके अंदर पानी रखोगे, तो नीचे वाला जो पानी होगा वो पहले गर्म होगा और वो ऊपर की तरफ आएगा, लाइटर हो जाएगा. तो जो कूलर होगा वाटर वो नीचे चला जाएगा. इस प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन. एंड इट कंटिन्यूज टिल द एंटायर लिक्विड. ये पूरा चलता रहेगा जब तक कि एंटायर लिक्विड अच्छे से गर्म ना हो जाए. दस लिक्विड राइज व्हेन हीटेड जस्ट लाइक एयर. तो लिक्विड्स भी राइज करते हैं जैसे कि एयर राइज करते हैं. Activity 7.3, let us find out. Caution. This activity should be carried out under the supervision of an adult or teacher. ठीक है, ये भी एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी आप करें वो आपको सुपरविजन किसके अंदर करना है, किसी टीचर या फिर अडल्ट के साथ. टेक अ 500 मिलीलीटर बीकर. ठीक है, 500 मिलीलीटर का आपने एक बीकर लेना है, हाफ फिल्ड विद वाटर. उसमें क्या करना है, आधा पानी भरना है. विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ प्लेस अ ग्रेन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एट द सेंटर ऑफ बीकर बेस. बीकर की बेस पर, बीकर मतलब बीकर के बिल्कुल नीचे, स्ट्रॉ की हेल्प से आपने पोटेशियम पर मैग्नेट जो है वो बीच में एक रखना है, एक ग्रेन. प्लेस अ कैंडल राइट बिलो द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ बीकर. और बीकर के बेस के सेंटर पे आपने क्या रखनी है, एक कैंडल भी. ये एक्टिविटी देख लो. ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये कैंडल है. ठीक है, कैंडल रखी हुई है और स्ट्रॉ की हेल्प से आपने यहाँ पर बीच में पोटेशियम जो है वो रखना है. ठीक है, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ कलर्ड स्ट्रीक इन वाटर. ठीक है, आपने ऑब्जर्व करनी है मूवमेंट कि पानी की क्या मूवमेंट होती है. एज यू सप्लाई हीट, जैसे जैसे पानी यहाँ पे गर्म होगा, अ स्ट्रीक ऑफ कलर स्टार्ट्स मूविंग अप एंड देन कमिंग डाउन फ्रॉम द साइड्स. ठीक है, एक स्ट्रीक जो है ना कलर का, एक तरह का कलर जो है वो मूव होगा, ऊपर की तरफ जाएगा और फिर वापस वो नीचे आएगा साइड से. वाई डज द स्ट्रीक ऑफ कलर्ड वाटर गो अप इन द मिडल एंड कम्स डाउन फ्रॉम साइड. स्ट्रीक ऑफ जो कलर्ड वाटर है वो बीच में से ऊपर जा रहा है और वापस आते हुए साइड से आ रहा है, ऐसा क्यों. द वाटर एट द बॉटम ऑफ बीकर गेट्स हीटेड अप. जो नीचे का पानी है वो पहले हीट अप हो रहा है और गर्म हो रहा है. ठीक है, वो एक्सपैंड होकर लाइटर हो रहा है, बिकम्स लाइटर एंड राइजेस. ठीक है, वो राइज हो रहा है.
एंड द वाटर ऑन द साइड्स ऑफ बीकर इज कंपेरेटिवली कूलर एंड हेवियर, और जो साइड में वाटर है वो क्या हो रहा है, वो कूल है, मतलब कि वो ठंडा है और हेवियर है, इसलिए वो साइडों से नीचे आ रहा है। एंड कम्स डाउन टू टेक प्लेस ऑफ राइजिंग वाटर, और जो राइजिंग वाटर जो गर्म पानी है उसकी प्लेस लेने आ रहा है। देन दिस वाटर गेट्स हीटेड इन टर्न ऑल्सो राइजेस, तो ये जो वाटर है, जो ऐसे ये प्रोसेस जो है ये चलती रहेगी जब तक पानी पूरे तरीके से गर्म नहीं हो जाएगा। दिस साइकिल continues until the entire volume of water gets heated. In this case, the entire volume of water gets heated through the actual movement of water particle. तो ये water particle की वजह से हो रहा है, water particles जो हैं वो heat हो रहे हैं, इस वजह से ये हो रहा है. This process of transfer of heat is called convection. It is because convection that we see in the movement of colored streak inside the beaker. ठीक है, ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन हमेशा किसी इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट के थ्रू होता है। Thus we conclude that water like air gets heated up by convection. Here heat transfer take place by actual movement of particles of liquid and gases from one place to another. ठीक है, जब हीट ट्रांसफर होता है कैसे, पार्टिकल्स मूव करते हैं लिक्विड या गैसेस में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन हमेशा ही किसी इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट से होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू कैन सी, देखो वार्म मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पे ये कूल मॉलिक्यूल्स है। वार्म मॉलिक्यूल्स जो है वो राइज कर जाएंगे, क्यों, क्योंकि वो लाइटर हो रहे हैं, और जो कूल मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि वो हैवियर हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आपने पानी पर कोई भी पतीला रखा या आपने कोई भी फ्राइंग पैन रखा, ठीक है, तो पतीले के अंदर का जो पानी है ना वो गर्म हो रहा होगा। ठीक है, गर्म होएगा, और उसके बाद जो पानी जो है ना वो पानी जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है ना वो पतीले से हो रही है डायरेक्टली, जो है वो पानी गर्म नहीं हो रहा। ठीक है, आपको पता है पतीले के उससे ही हीट ट्रांसफ़र हो रही है, तो ये एक इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट है। पतीला यहाँ पर एक इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट है जिससे पानी गर्म हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं कन्वेक्शन, क्योंकि यहाँ पर पतीले के थ्रू ही जो है वो पानी गर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। So this is part 1 of this chapter, in which we have learnt about the transfer of heat. That transfer of heat is when hot molecules converted to cold molecules. It is called the transfer of heat, and it can be done by 3 ways. One is conduction, that take place in solid, convection that take place in liquid and gas, and the third one is radiation, which we will read and understand in the next video, which will be part 2 video of this chapter. So I hope you have understood till here. I'll meet you soon now in my next video, so stay tuned to my channel. So see you soon in my next video now. Thank you.